Hello students, welcome to the YouTube channel of Welkin National School, Vasai East. This is Mrs. Deepa Vallakati, the subject teacher of science. Today we are going to learn chapter number 20 in the world of stars from standard 7th. Hello students, in this chapter we will learn that in the world of the stars that we all know what is galaxy and what are the various components of the galaxy. The galaxy is made up of the number of clusters of the stars, yes, no, and there are solar systems. Many of the solar systems were there. So what are the different types of stars? So the stars are also, some stars are very large, some stars are small in size. So according to that, there are many types of stars are there. Okay, we have already learned about the galaxies and the stars as well as the solar system in the and its different components in the earlier standards itself. Yes, no, in the 6th standard we have learned about the galaxies, types of galaxies and the stars and what is solar system and what are the different components of the solar system. In our solar system we are having the planets, star, sun, okay, and exclude that the satellites are there and the asteroid belts are there. ओके यस, स्टार्स आर बॉर्न आउट ऑफ न्यूबले. स्टार्स किससे बॉर्न होते हैं? स्टार्स है ना न्यूबले से बॉर्न होते हैं. ओके, न्यूबले इज व्हाट? न्यूबले आर द क्लाउड्स मेड अप ऑफ मेनली ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स. सो ये न्यूबले क्या होता है? ये एक तरीके का क्लाउड्स है एंड इस क्लाउड्स के अंदर स्पेशली हाइड्रोजन गैस एंड द डस्ट पार्टिकल्स आर देयर. The particles in these clouds are attracted towards one another due to the force of gravity. Okay, in these particles also there is a force is there. What force? That is a gravitational force. Because of this gravitational force, they will contract. That means they will all come together. As a result, the cloud contracts, becomes the dense और वो thick होने लगती है, बड़ा होने लगती है. It is in the spherical shape. At the same time, the pressure of the gas at the core of the cloud increase. So when it coming together, so the density will increase and in the middle part of that star, okay, in that middle part of that density, okay, the pressure will increase and the temperature starts rising tremendously. इसके वजह से वो temperature ज़्यादा होने लगती है. So because of this increase in the temperature, it will generate the energy. Okay, it will generate the energy. Otherwise you can say that there is a bombarding of the hydrogen gas will starts place. Okay, so in this way the energy generate process starts here. Such a spherical cloud of the hydrogen is called star. Okay, अभी उसको हम बुला सकते हैं that nebulae will gonna be converted as into the star. Later, process such as the contraction, expansion, rise in temperature, etc., these all will gonna takes place one by one, bring about the changes in the nature of the star. So all these processes will bring the changes in the sun. Okay, what kind of changes it will make? Okay, if the expansion it will takes place, so the sun will become the expand. Okay, and if it is a contraction, the sun will become very bright. Okay, so because of these things the changes will occur in the star. These changes occur over a very long period time. That means all these changes will never gonna be happen in within a day or within a year. Okay, it will take 1,000 and 1,000 of years to become a changes in that. Okay, so these changes occur very long period of time and constituent of the life cycle of star. The different forms of the stars at a various stages during this life cycle are identified are different types of stars. Okay, तो ये processes के टाइम जैसे जैसे प्रोसेसेस होते रहते हैं ना, वैसे वैसे हम लोगों को पता चलने लगता है कि ना बहुत सारे प्रोसेसिंग में है ना स्टार चेंज हो रहा है. सो इसको हम कहा जाता है दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स. इन द फॉलोइंग फिगर शोज डिफरेंट स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार्स आफ्टर दैट बर्थ from the nebulae. Discuss this in the class. So first of all we will found the nebulae, that is a cluster, that is a what? A cloud of the gases. Okay, when the gases will contract, either it will become a ordinary star or it will become a massive star. जब ये क्लस्टर्स में से या फिर ये क्लाउड में से बहुत सारे छोटे छोटे डेंसिटीज फॉर्म होते हैं तो वो एक ऑर्डिनरी स्टार्स बनते हैं. ओके, वो सारे छोटे छोटे चीज़ें हैं ना ऑर्डिनरी स्टार बनते हैं. व्हेन देर इज़ अ
density is big, when all those small objects will gonna come together and form a big density, then it will become a massive star which will give the light of bluish color. Okay, then afterward this ordinary star will gonna convert into the red giant star. Okay, ये है ना, जब एक्सपेंशन होता रहता है उसके अंदर तो वो रेड जाइंट स्टार होती है, एंड आफ्टर दैट इट विल बी बिकम अ प्लानिटरी न्यूबुले. ओके, वो बहुत सालों के बाद में वो न्यूबुले बन सकते हैं. दैट मीन्स कि है ना, उसके अंदर का जितनी भी एनर्जी है, दैट एनर्जी विल गोना बी यूज्ड अप, देन आफ्टरवर्ड द एनर्जी विल नेवर एवर गोना बी एग्जिस्ट. एट दैट मोमेंट अगेन द गैसेस विल मूव अवे फ्रॉम वन अनदर. At that moment, the planet will convert into the planetary nebulae. Then afterward, when the energy is totally gone, it will become a white dwarf. Okay. Next, come forward for the massive star. Okay. This massive star will expand and expand. It will become a red giant superstar. Okay. It will become a red super giant star. Okay, when there is a contraction in this it will shine very much. We will call it as a supernova. What do we call it? We will call it as a supernova. Okay, so after that supernova, when the energy will gonna be end, at that moment either it will become a neutral star, मतलब जो चमकता नहीं है, or it will become a black hole. What is the speciality of the black hole? That it is having a lots of gravitational force, that it can attract any of the giant body into its small hole. Nothing will gonna come out from this black hole, not even the light also. Understood? So our solar system is a tiny part of the galaxy called Milky Way. So where we are living in the galaxy. What is our galaxy name? The galaxy name where we are living, that is a Milky Way, which is many times larger than the solar system. So it is kind of, what you can think, that 10-20 lakhs में से या फिर 10-20 बिलियंस में से एक पार्ट हमारा सोलर सिस्टम है. अंडरस्टूड कि मिल्की वे में इतने सारे सोलर सिस्टम्स हो सकते हैं या फिर इतने सारे स्टार्स हो सकते हैं. देर आर लैक्स ऑफ स्टार्स इन द मिल्की वे, सम ऑफ देम बीइंग मेनी टाइम्स बिगर देन आर्स. Okay, our sun, and some of them have their own planetary systems. जैसा हमारा खुद का प्लानिटरी सिस्टम है सन का, वैसे ही कुछ अलग तरीके का प्लानिटरी सिस्टम्स भी हैं. स्टार्स इन द मिल्की वे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन कलर. मिल्की वे के अंदर स्टार्स है ना, सबका डिफरेंट कलर्स देखने मिलता है. ब्राइटनेस डिफरेंट रहता है, उसका साइज भी डिफरेंट रहता है. ओके, एज वी कैन सी इन द पिक्चर 20.1. Some stars which appear to be close to the one another making a particular figure are together known as a constellation. So sometimes we can see that if stars are coming together and it is forming a particular design, so at that moment we will call it as a constellation. Okay, in this chapter. But before that, let us learn a few basic concepts related to the sky watching. How we can watch the sky. Sky watching. Stand still in an open space and look into the distance. What do you notice about the ground in the sky? Okay, अगर आप एक जगह पे खड़े रह के सीधी तरीके से खड़े रह के ज़मीन को पैरेलल में, सो आप वहाँ से क्या देख सकते हो? नाउ स्टिल लुकिंग इनटू द डिस्टेंस, टर्न अराउंड योरसेल्फ एंड ऑब्जर्व द ग्राउंड एंड द स्काई एज यू डू सो. ओके, फार अवे द स्काई सीम्स टू बी टचिंग द ग्राउंड. ऐसे लगता है बहुत दूर की तरफ देखने लगेंगे. नॉट हियर ऑन द प्लेन ग्राउंड, एक्चुअली इट इज. सो वी कैन ऑब्जर्व दैट समवेयर द स्काई इज टचिंग द लैंड. Yes, no? The line at which they meet is called a horizon. Okay, where we can see that the line where a sky is touching the ground, that line, imaginary line that is, okay, we will call it as horizon. While turning around oneself, the horizon will be seen
फॉर्म अ सर्कल, अगर हम लोग वो हॉरिजॉन को राउंड राउंड में घूमते हुए देखेंगे तो हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये हॉरिजॉन है ना एक सर्कल शेप में है. ओके, एंड द स्काई विल अपीयर टू बी स्पेरिकल और स्पीयर बेस्ड ऑन दिस सर्कल. ये हम लोग को स्काई किस तरीके से दिखेगा, हमारा स्काई है ना एक डोम शेप में है या फिर स्पीयर शेप में है करके. ओके, द स्टार्स इन द प्लैनेट्स मूविंग इन द स्काई अपीयर टू बी मूविंग इन दिस स्पीयर. ऐसे लगता है कि जो भी स्टार्स दिखते हैं या फिर स्काई के अंदर जो सन दिखता है वो भी है ना इसी स्पीयर का स्पेस के अंदर घूम रहे हैं. दिस वर्चुअल स्पीयर इज कॉल्ड अ सेलेस्टियल स्पीयर. ये वर्चुअल स्पीयर जो है, जो हम लोग ने इमेजिन करके हमारी तरफ से मनगढ़ंत तरीके से बनाया है, दिस वी कॉल एज अ सेलेस्टियल स्पीयर. व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ सेलेस्टियल स्पीयर? बिकॉज इट इज हैविंग टू हाफ्स. सर्कुलर हॉरिजॉन को दो हाफ्स में डिवाइड किया है. ओके, विच will divide this sphere into the two halves. One is zenith, next one is nadir. Okay, why it is zenith? If you see from the left side to the right hand side, we can see that there is a half circle, correct? No, this half circle we will call it as a zenith. While standing on the ground, the point on the celestial sphere exactly above our head is called zenith. ओके, जो हमारे सिर के ऊपर जो एग्जैक्ट पॉइंट है ना डोम को टच होने वाला या फिर स्पीयर को टच होने वाला, दैट वी कॉल इट एज जेनिथ. नेक्स्ट इट कम्स द नादिर. ओके, वाइल स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, द पॉइंट ऑन द सेलेस्टियल स्पीयर एग्जैक्टली बिलो आवर फीट, दिस वी कॉल इट एज नादिर. ओके, सो फ्रॉम वेयर वी कैन टच द ग्राउंड by our foot, that point will be denoted as a nadir. Now let us understand celestial poles. What are these celestial poles? Okay, so if we extend the axis of rotation of the earth in the north and south direction, यही rotation को हम लोग north and south directions में देंगे, so it will penetrate the celestial spheres at points called the celestial north pole and celestial south pole. Okay, जब हम लोग इसको continuously है ना extend करते जाएंगे हमारे फुट से, तो ये हम लोगों को है ना कहाँ पे इंटरप्रेट होगा, इट विल इंटरकनेक्ट एट द celestial north pole and celestial south pole, yes, respectively. So this we call it as celestial poles. One is celestial north pole and one is celestial south pole, which you can see in the figure 20.2. Next it comes the meridian. What is this meridian? In the astronomy, the great circle which passes through the both the celestial poles and observes zenith and nadir is called a meridian. सो मेरिडियन क्या होता है, जो है ये सेलेस्टियल पोल से एक सर्कल जा रही है जो है ना एग्जैक्टली जेनिथ को और नादिर को टच हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं मेरिडियन. ओके, सो ये मेरिडियन से ही एक्चुअली हम लोग सूरज की रोशनी को काउंट करना स्टार्ट करते हैं. अदरवाइज वी विल स्टार्ट द टाइमिंग फ्रॉम दिस मेरिडियन ओनली. नेक्स्ट इट कम्स द celestial equator. If we uniformly expand Earth's equator in all directions indefinitely, अगर हम लोग है ना अर्थ को एक्सपैंड करेंगे इक्वेटर का, उसको यूनिफॉर्मली करेंगे, तो ये क्या होती है, ये है ना इट विल पेनिट्रेट द सेलेस्टियल स्पीयर. ये है ना सेलेस्टियल स्पीयर के अंदर से पेनिट्रेट गुजरता हुआ जाएगा along the circle. This circle is known as the celestial equator. ये celestial equator है. Okay, in the same path as the equator, Earth's equator पास होती है, उसी same path में से हम लोगों का celestial equator भी पास होएगा. Next it comes the elliptic. What is this elliptic? See, the Earth moves around the sun, but seen from the Earth, the sun appears to be moving. Okay, actually देखने जाएंगे, the Earth will take the rotations of the sun, but if we stand and watch from here, we can see that instead of the Earth, the sun is moving from the sun is moving from east to the west. Correct, no? So this is elliptical. The circle describing the apparent motion of the sun around the Earth is called elliptical. Okay. Now let us understand sky and space. Standing in an open space, if we look at the sky on the cloudless night, we see numerous stars. Yes, no? जब हम लोग clear space, clear night में
जब हम लोग देखते हैं हम लोगों को बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं. The portion of the earth atmosphere and the portion beyond the which can be seen from the roof by our eyes while standing on the earth is called a sky. Okay, जब हम लोग यहाँ से जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमारा फुट है, वहाँ से लेकर जहाँ तक स्टार्स है वो फुल स्पेस को हम बोलते हैं स्काई. नाउ व्हाट इज स्पेस? ओके, सो स्काई और स्पेस में क्या डिफरेंस है? द स्काई हम लोग तब तक बोल सकते हैं जब तक हम लोग की एटमॉस्फेयर है. अंडरस्टूड? नाउ लेट अस स्टार्ट अबाउट द स्पेस. व्हाट इज स्पेस? द कंटिन्यूअस एम्प्टी स्पेस बिटवीन द स्पीयर्स. दैट मीन्स प्लैनेट से प्लैनेट के बीच में रहने दो, एक स्टार से दूसरे स्टार के बीच में रहने दो. ये जो स्पेस है जिसके अंदर हवा नहीं है, दैट वी कॉल एज अ स्पेस. इन द स्काई इज कॉल्ड द स्पेस. इट मे कंटेन गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स. न्यूमरस स्टार क्लस्टर्स हैव फॉर्म्ड इन द स्पेस. In the sun, the moon and the star are seen to rise in the east and set in the west because earth rotates from west to the east. Yes, no? हम लोगों को ऐसा लगता है कि सूरज है ना ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है, बट एक्चुअली हमारी अर्थ उसके ऑपोजिट में घूम रही है, इसीलिए ऑपोजिट में रोटेट हो रही है, इसीलिए हम लोग को इस तरीके का भ्रम होता है, वेस्ट टू ईस्ट. अदरवाइज द सन इज अ स्टार, इट विल नेवर चेंज इट्स प्लेस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन. अंडरस्टूड? इफ वी ऑब्जर्व केयरफुली वी विल ऑल्सो नोटिस दैट स्टार राइज एंड सेट 4 minutes अर्लियर एवरी डे. अगर हम लोग प्रॉपरली ऑब्जर्व करेंगे कि हर एक दिन सूरज है ना 4 मिनट पहले उगता है एज कंपेयर टू द लास्ट डे. That is, if the star rises at 8 p.m. tonight, star rises 8 p.m. tonight, it will rise 7:56 p.m. tomorrow. Okay, मतलब हर दिन है ना stars 4 मिनट पहले दिखाई पड़ते हैं in the sky. That means अगर आज के दिन 8 बजे दिखाई देगा तो कल के दिन 7:56 को. Then after that day we can see 7:52. Understood? In this way. Against the background of the stars, the sun and the moon appear to move from west to the east. ओके, हम लोगों को ऐसा दिखाई देने लगता है कि है ना कि जो सन है या फिर मून है ये सब वेस्ट से लेकर ईस्ट तक चल रहे हैं या फिर घूम रहे हैं. द सन मूविंग थ्रू 1 degree एवरी डे. ओके, ऑलवेज हम लोगों का सन कितना घूमता है? 1 degree घूमता है. दैट मीन्स सन से लेकर अर्थ का रोटेशन जो है ना मिनिमम 1 degree का रहता है. द मून थ्रू 12 to 13 degrees. और मून का कितना डिग्रीज रहता है? 12 to 13 degrees का मूवमेंट रहता है. दिस हैपेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड द सून अराउंड द मून अराउंड द अर्थ. ओके, now let us understand about the constellations. What are these constellations? The group of stars occupying in a small portion of the celestial sphere is called constellation. देखो रात में जब तुम लोग है ना क्लियर स्काई में स्टार्स को देखते हैं, वो स्टार्स से है ना हम लोग कुछ ड्राइंग्स करते रहते हैं. दैट मीन बाय जॉइनिंग द वन स्टार टू द अनदर स्टार. ओके, सो दिस designs we call as a constellation. Some of these stars appear to be form certain figures of the animals, ह्यूमन्स और ऑब्जेक्ट्स. येस ना, कि कुछ कुछ हम लोगों को ऐसा दिखाई देने लगते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं जस्ट लाइक एनिमल्स है या फिर ह्यूमन्स है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है. सच फिगर्स हैव बीन नेम्ड आफ्टर सर्टेन इवेंट और बिलीफ ऑफ द टाइम व्हेन द कॉन्स्टलेशंस वर आइडेंटिफाइड. जब ये कॉन्स्टलेशंस को आइडेंटिफाई किया गया है ना तो वो फिगर्स को और वो कॉन्स्टलेशन को प्रॉपर नाम दिया गया है. इन दिस वे वेस्टर्न ऑब्जर्वर हैव डिवाइडेड द सेलेस्टियल स्फीयर इनटू 88 कॉन्स्टलेशंस. जो हमारा स्काई है ना, सो हमारे स्काई के अंदर 88 कॉन्स्टलेशंस अलग अलग डिग्रीज के अंदर 88 कॉन्स्टलेशंस फाइंड आउट किया गया है. सिमिलरली द एंशियंट वेस्टर्न एस्ट्रोनॉमर्स पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ 12 जोडियक साइंस. ओके, मतलब इसके अंदर ये 88 कॉन्स्टलेशंस के अंदर 12 जोडियक साइंस बनाया है. वेयर एज द इंडियन एस्ट्रोनॉमर सजेस्टेड द 27 नक्षत्रास. ओके, ये 27 नक्षत्रास को लेकर हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स बताते हैं. सो ये नक्षत्रास क्या है एक्चुअली? रोहिणी, अश्विनी, भरणी, ये सब हमारे राशि का नक्षत्र है बेटा.
ओके, सो ये नक्षत्रों के अकॉर्डिंगली हमारे इंडियन वालों ने एस्ट्रोनॉमी को फाइंड आउट किया है। अंडरस्टूड। नाउ लेट अस लर्न अबाउट द ज़ोडिएक साइंस। ओके, ज़ोडिएक साइन क्या रहता है? जो हम लोगों का राशि रहता है ना, राशि को ही ज़ोडिएक साइन बोलते हैं। सो द एलिप्टिकल हैज़ बीन इमेजिन टू बी डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल पार्ट्स। जो हमारा एलिप्टिकल पार्ट है ना, ये एलिप्टिकल पार्ट को जो हमारा क्या बोलते हैं, ये हॉरिजन से लेकर नादिर जेनिथ तक है ना, 12 कॉन्स्टिलेशन 12 पार्ट्स में डिवाइड किया है। दस ईच पार्ट सब डिवाइडेड 30 डिग्री, दैट मीन्स 360 डिग्रीज को हम लोग ने 30 डिग्रीज के हिसाब से 12 पार्ट्स में डिवाइड किया है हमारी स्काई को। ओके, सो ईच ऑफ दीज पार्ट्स इज कॉल्ड द राशि और जोडिएक साइन। देर आर नेम्ड एज द एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius and Pisces. These are the 12 zodiac signs या फिर राशि। ओके, जो हम लोग बोलते हैं ना, मेष, मीन, कन्या, तुला, वृश्चिक, ये सब हमारी राशि है। नेक्स्ट इट कम्स द नक्षत्रास। द मून कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ अप्रोक्सीमेटली 27.3 डेज। मतलब हमारी मून को एक रिवोल्यूशन लेने के लिए अर्थ का मिनिमम 27.3 डेज लगता है। 27 दिन 3 घंटे पर पकड़ लीजिए। द पोर्शन ट्रेवर्स्ड बाय द मून इन वन डे इज कॉल्ड नक्षत्र। कि कितना मून एक दिन में पोर्शन कवर अप कर रही है, उसको हम माना जाता है एक नक्षत्र है। सो इफ वी डिवाइड द 360 डिग्री इंटू 27 इक्वल पार्ट्स, 13 से लेकर 13 डिग्रीज का 20 मिनट्स तक हो सकता है। ओके, ईच पार्ट इज अबाउट 13 डिग्रीज एंड 20 मिनट्स। सो अ नक्षत्र इज नोन फ्रॉम द ब्राइटेस्ट स्टार दैट इट कंटेन्स। मतलब नक्षत्र क्या होता है? वो कॉन्स्टिलेशन के अंदर जो सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्टार है, हम लोग उसको नक्षत्र के द्वारा माने हैं। बिकॉज इन कॉन्स्टिलेशन देर आर मेनी स्टार्स आर देयर, बट फ्रॉम देम वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार वी विल डिनोटेड इट एज अ nakshatra. So this brightest star is called the Yogatara. What do we call it as? We will call it as Yogatara. Which nakshatra we can see during the sky watch depend upon the position of the each along its orbit. Okay, so in the 360 days we cannot see the same stars. We cannot see the same stars. Okay, if you see along with your nadir round, that means from your meridian, you can observe that every time you will see the different constellations. Understood? So the place for the sky watching should be away from the city. place जो हम लोग स्काई वॉचिंग का रखते हैं ना, वो है ना सिटी से दूर रहना चाहिए, ताकि हम लोग है ना न्यू मून लाइट पे प्रॉपरली सारे स्काई को वॉच कर सकें। बाइनोकुलर और द टेलीस्कोप शुड बी यूज्ड फॉर स्काई वॉचिंग। क्या चीज़ यूज़ करते हैं हम लोग? विच इक्विपमेंट्स वी विल यूज़ फॉर वॉचिंग द स्काई? वी विल यूज़ बाइनोकुलर और वी विल यूज़ द टेलीस्कोप। नेक्स्ट इट कम्स आइडेंटिफाइंग द पोल स्टार इन द नॉर्थ मेक्स द स्काई वॉच ईजियर। ओके, एक्चुअली हाउ कैन वी ऑब्जर्व दैट फ्रॉम विच कॉन्स्टलेशन वी नीड टू स्टार्ट? एक्चुअली एक पोल स्टार है जिसको हम बोलते हैं ध्रुव तारा, जो सबसे पहला दिखाई पड़ती है आकाश के अंदर। दैट मीन्स इन द स्काई वी कैन सी द फर्स्ट स्टार एवरी नाइट, दैट इज़ द पोल स्टार, ध्रुव तारा। ओके, इसके रेफरेंस से हम लोग स्काई वॉच करते हैं। एज द स्टार इन द वेस्ट सेट अर्ली, द स्काई वॉचिंग शुड बिगिन विद द स्टार्स इन द वेस्ट। ओके, सो क्या है, स्टार्स है ना वेस्ट साइड में अर्ली पहले जब सेट हो जाती है, तो वो है ना बिगिन भी कहाँ से होती है? वेस्ट से ही होती है। एज इन द जोग्राफिकल मैप, द ईस्ट एंड द वेस्ट आर शोन इन द राइट एंड लेफ्ट रेस्पेक्टिवली इन द स्काई मैप। स्काई मैप में ऑलवेज ये किस तरीके से दिखाई देता है? ईस्ट का वेस्ट में या फिर वेस्ट का ईस्ट में दिखाई पड़ती है। इसीलिए हम लोगों को स्काई मैपिंग किस तरीके से देखता है? ईस्ट का जो भी पार्ट है ना, वो सब हम लोग को राइट हैंड साइड पे दिखेगा, वेस्ट का जो भी पार्ट है वो सब हमको लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा। ऑन अ मैप, ऑन अ स्काई मैप, द नॉर्थ एंड द साउथ आर टूवर्ड्स द बॉटम एंड टॉप ऑफ द मैप रेस्पेक्टिवली। जब हम लोग कोई मैप देखते हैं ना, नॉर्थ एंड साउथ कहाँ दिखता है? हम लोग को पेज के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ हम लोग को नॉर्थ एंड साउथ दिखाई देता है। और कोई मैप पढ़ते हैं तो हम लोग को राइट एंड लेफ्ट में
ईस्ट एंड वेस्ट दिखाई देता है। दिस इज़ बिकॉज द स्काई मैप इज़ टू बी हेल्ड ओवर हेड, क्योंकि हम लोग ऑलवेज स्काई मैप को किस तरीके से पकड़ते हैं, ओवर हेड, हमारे सिर के ऊपर से पकड़ते हैं, इसीलिए हम लोग को वो नॉर्थ को हम लोग ने सिर के ऊपर वाला पार्ट मानते हैं, इसीलिए वी विल कीप इट ऑन द ओवर हेड ऑफ द पेपर. In this way we will prepare the sky map. Hold the sky map in such a way that the direction we faces is at the bottom side. Understood? Getting to know some constellations. Now we will learn about the constellations. During the summer night, one can see a particular arrangement of the 7 stars. Summer night में हम लोग को 7 stars का एक particular arrangement दिखाई देती है. So we call them as a सप्तऋषि और we will call them as a सप्तऋषि मंडल. वो constellation को, वो 7 star को हम लोग बोलते हैं सप्तऋषि मंडल. In the month of February, this constellation rises around 8 p.m. in the northeast. फरवरी के अंदर ये वाला कभी दिखाई पड़ती है, रात के 8 बजे नॉर्थ और ईस्ट के मिडिल में दिखाई देता है. इट इज़ ऑन द मेरिडियन इन द मंथ ऑफ अप्रैल. ये है ना कौन से मेरिडियन पे दिखाई देती है, अप्रैल में. इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इट विल सेट्स अराउंड 8 p.m. ओके, ये 8 बजे तक फिनिश हो जाती है, दिखाई नहीं पड़ती 8 बजे के बाद में. एज द सेम नेम सजेस्ट, सप्तऋषि इज अ ग्रुप ऑफ 7 ब्राइट स्टार्स. सो इन दिस कॉन्स्टलेशन व्हाई इट इज गिवन द 7 सप्तऋषि, बिकॉज in that constellation we can see a 7 bright stars. So when we join them, that is why we have called it as a saptarishi. Okay, it is in the shape of the quadrangular. Okay, एक quadrilateral और एक angle के shape में दिखता है, with the tail made up of 3 stars. Okay, as you can see in this picture in the first one, that the tail is made up of 3 stars. Okay, it thus resembles a kite and can be easily recognized. ये है ना एक काइट जैसा दिखता है, काइट का जो बहुत लंबा सा पीछे वाला लाइन रहता है ना, फ्रिल्स वैसा. ओके, ये easily recognizable है. If we extend one side of the quadrangle, it reaches to the pole star. अगर हम लोग क्वाड्रेंगल से एक सीधा लाइन खींचेंगे तो वो हम लोग का कहाँ तक पहुँचेगा, डायरेक्टली पोल स्टार तक. सो डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट नेम्स फॉर दिस कॉन्स्टलेशन. ओके, सारे कंट्रीज के लिए एक ही नेम नहीं है. ओके, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल नेम इट एज अ ग्रेट बेयर. ओके, और सम ऑफ देम आर नेम इट बाय द सप्तऋषि, एंड इन इंडियंस वी विल नोन इट एज सप्तऋषि मंडल. ओके, नेक्स्ट कॉन्स्टलेशन इट कम्स द कॉन्स्टलेशन ऑफ सप्तऋषि एंड द शर्मिष्ठा और द Cassiopeia are useful in locating the pole star. ये है ना कहाँ दिखता है, शर्मिष्ठा है ना, ये पोल स्टार से सीधा दिखाई देता है. ओके, ये ऐसा लगने लगता है कि कोई M लेटर लिख रहा है. ओके, the perpendicular bisector of the line joining the third and the fourth star is Sharmishta. The third and fourth star you can see over here. ओके, द फर्स्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ स्टार के बीच में से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना, इट विल डायरेक्टली रीच टू द पोल स्टार. ओके, सो द पोल स्टार हैज सप्तऋषि वन साइड एंड शर्मिष्ठा ऑन द अदर साइड. सो पोल स्टार के एक तरफ सप्तऋषि मंडल रहता है और दूसरी तरफ शर्मिष्ठा रहता है. ओके, द पोल स्टार हैज द सप्तऋषि ऑन द वन साइड एंड शर्मिष्ठा ऑन द अदर. एज शर्मिष्ठा सेट्स, सप्तऋषि राइजेस. ओके, जब एक सेट होती है तो दूसरा राइज होती है. थस वी कैन ऑलवेज यूज आइदर वन और अदर एज अ रेफरेंस पॉइंट ऑन एनी गिवन नाइट. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इट कम्स द मृग नक्षत्र, मृग. ओके, और ओरियन. ओके, ओरियन हैज़ अ वेरी ब्राइट स्टार. ओरियन क्या है, एक बहुत ब्राइट स्टार है. ऑन अ विंटर नाइट्स दे कैन बी ईजिली आइडेंटिफाइड. विंटर नाइट्स में ये हम लोग ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिकॉज 3 स्टार्स जो कोलिनियर में आता है, जो एक दूसरे से लाइन के जैसा पास होता रहता है. अंडरस्टूड. द लाइन पासिंग थ्रू द 3 मिडल स्टार्स ऑफ द कॉन्स्टलेशन व्हेन एक्सटेंडेड इट मीट्स वेरी ब्राइट स्टार. ओके, दिस इज व्यत और सीरियस. ओके, ये तीनों को है ना जब हम लोग मिला के आगे बढ़ाएंगे वो कहा जाता है आइदर इट विल जॉइन द व्यत
or serious. Understood? So, during the month of the December, Mrug Nakshatra rises at 8 p.m. on the eastern horizon. Okay, and ड्यूरिंग द फेब्रुवरी से लेकर जून तक ये 8 बजे तक दिखाई ख़त्म हो जाती है ऑन द मेरिडियन. नेक्स्ट इट कम्स द वृश्चिक और वी कॉल इट एज स्कॉर्पियो. ओके, इट इज़ अ कॉन्स्टलेशन विद द 10 to 12 stars. Here we are having in this constellation total 10 to 12 stars. That is Jyeshta or the Anthrace is the brightest among them. ये सारे में से ज्येष्ठा या फिर इसको नाम दिया गया है एंथर्स. ये है ना, ये बहुत ही बढ़िया स्टार है, मतलब ज़्यादा चमकने वाला. दिस कॉन्स्टलेशन इज बिलो द इक्वेटर. इट इज़ बिलो द इक्वेटर in the sky of the southern hemisphere. On the third week of the April, it can be seen in the eastern sky a few hours after sunset. With the help of your friends, draw a big circle on the ground as shown in the figure. Okay, तुम्हारे friends के accordingly तुम लोग एक बहुत बड़ा सर्कल बना दीजिए. Ask the 12 of your friends to stand at the equal distance along the circle. Okay, अगर वो सर्कल के अकॉर्डिंगली आप लोग देख रहे हो, टेल योर फ्रेंड्स टू बी स्टैंड इट द फ्रॉम द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. ओके, ईच होल्डिंग अ प्ले कार्ड with the name of one zodiac sign in a proper order. This is a kind of activity. Okay, now make one friend stand as the sun at the center of the circle and now move along the smaller circle अराउंड द सन. ओके, ये जो स्मॉलर सर्कल है ना, वहाँ पे आप मूव होते जाइए फेसिंग टूवर्ड्स द व्हाट डू यू नोटिस एज यू मूव अलोंग द सर्कुलर पाथ एज योर फ्रेंड्स टू टेक अ टर्न डू द सेम, डिस्कस व्हाट एवरीबडी सीज. ओके, जस्ट आस्क योर फ्रेंड्स की है ना, मेक हर टू बी मूव. ओके, सो जब तुम अर्थ में से सन के तरफ घूमने लगती हो, यू कैन नॉट सी द स्टार्स विच आर फॉलिंग बिहाइंड द सन. यस, नो, इज इट करेक्ट? यस. सो द ऑब्जर्वर लुकिंग एट द सन सीज नॉट ओनली द सन बट ऑल्सो द कॉन्स्टलेशन बिहाइंड द सन. ओके, ये कॉन्स्टलेशन सन को ही नहीं, सन के पीछे वाला कॉन्स्टलेशन को भी देख रहा है. सो द कॉन्स्टलेशन कैन नॉट बी सीन इन ब्राइट सनलाइट. ये कॉन्स्टलेशन है ना, सूरज की रोशनी इतनी ब्राइट रहती है तो वी कैन नॉट सी देम, बट इट इज़ इंडेड प्रेजेंट बिहाइंड द सन. लेकिन ये सारे तुम्हारे फ्रेंड्स सन के पीछे है एक्चुअल में. As the earth changes its position, the different constellation or the zodiac signs or the राशि appear behind the sun. ओके, जैसे जैसे हम या फिर अर्थ घूमती रहती है, सूरज के पीछे वाला स्टार्स या फिर कॉन्स्टेलेशन या फिर जोडियक साइंस को दिखाई नहीं पड़ता है, उसका पोजीशन नहीं समझ में आता है. दिस इज what we express when we say that the sun enters the particular zodiac sign और राशि. एक्चुअली इसका मतलब ये होती है. सो अभी यहाँ पे देखो इन द फिगर यू कैन सी 20.4 दैट सन के पीछे लिब्रा और स्कॉर्पियो है. करेक्ट, नो? सो from A point we can say that the sun has entered into the Scorpio, and from the B point we can say that the sun has entered into the Libra. From the C point we can say that the sun has entered into the Virgo. Yes, no? So this way we can understand. So when we say that the sun enter into the particular zodiac sign or Rashi, for example, a Makar Sankranti, we say that the sun enters in the Makar Rashi. ओके, मकर संक्रांति हम लोग कब मनाते हैं? जब सन है ना मकर में एंटर होता है तभी. ओके, व्हेन द अर्थ इज एट द पॉइंट ए, फॉर ऑब्जर्वर ऑफ द अर्थ द सन अपीयर्स टू बी स्कॉर्पियो जोडियक साइन. ओके, फ्रॉम द बी पॉइंट वी कैन सी दैट द सन हैज एंटर्ड इनटू द लिब्रा. सो फ्रॉम द सी पॉइंट वी कैन सी दैट द सन हैज एंटर्ड इनटू द वर्गो. सो दिस इज this we call as a apparent motion, or from or we can call this as a apparent path. Okay, so ये जो changes हो रहे हैं ना, स्कॉर्पियो टू द लिब्रा, लिब्रा टू द वर्गो, वर्गो टू द लियो, here
Actually, the sun is not moving. Who are moving? The earth. That means we are the movers. But it seems that objects are moving exclude the earth. So this motion it called as a apparent motion, and in which path this motion is taking place, no, it will be called as a apparent path. So the rising of the sun in the east and its setting in the west, it also apparent motion, because sun is a constant object in the sky. It won't change its places like the प्लैनेट्स. अंडरस्टूड. सो जो हम लोग देखते हैं ना, सूरज सुबह उग गया है, शाम को डूब गया है, दिस आर ऑल व्हाट, दिस आर ऑल द apparent motion. Because of this apparent motion, it can be seems like this way. Okay, you might have heard some elders saying that the particular nakshatra is in the rising and now prevails. It means that at that time, if you look at the sun from the earth, the particular nakshatra is behind the sun. ओके इसके अलावा जब हम लोगों के घरों में बच्चे जब बर्थ होते हैं, एट दैट मोमेंट ऑल्सो वी विल डिसाइड देयर राशि बाय दिस टेक्निक ओनली. ओके, कि सूरज के पीछे कौन सा राशि था, वो राशि में बच्चा पैदा हो गया है. ओके, दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग द इंडियन एस्ट्रोनॉमी. So children, what we have learned from this chapter that first of all I would like to explain about the national institutions who are watching the sky and who are giving us the information about the sky. Okay, that is IUCAA, that is Inter University Center for Astronomy and the Astrophysics, which is at पुणे, कैरीज आउट द फंडामेंटल रिसर्च इन द एस्ट्रोनॉमी. ये इंस्टीट्यूशन का काम ये है कि है ना, जो एस्ट्रोनॉमिकल अंदर चेंजेस हो रहा है वो सब के बारे में इंफॉर्मेशन देना. इन इंडिया, प्लानिटोरियम्स नेम्ड आफ्टर द पंडित जवाहरलाल नेहरू हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एट न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, इलाहाबाद, मुंबई एंड अ न्यू इंग्लिश स्कूल इन द पुणे. ओके, ये सब जगह पे है ना हम लोग को प्लानिटोरियम्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है. ओके, और वहाँ पे है ना प्लानिटोरियम्स को बिल्ड किया है. दे प्रेजेंट अ वर्चुअल प्रोजेक्ट ऑफ द वेरियस स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशंस. यहाँ पे वर्चुअल प्रोजेक्ट्स देखने के लिए मिलता है हम लोग को. ओके, इफ़ यू गो इन द नेहरू साइंस सेंटर, from there you can go to the Nehru Planetarium. Over there you can see a virtual movie. Okay, there you can watch the constellations virtually. So do visit these places during the school tour or whenever is possible. Nowadays you all people are sitting at home, no, whenever your parents are getting a free period, free time, make them to take their permission, otherwise ask them to take you to there. Understood? Now always remember, science has proved that the constituents of the solar system, that is whatever it may be, the planets may be, satellites may be, or the comets, they are having a distant stars and the constellations do not have any influence on the human life. ये सब इंसान के लाइफ पे कोई प्रभाव नहीं रहता है. Otherwise many of the people will say that your planets are not well, so your rashi is not well, that is why you need to do some pujas. They will say all this nonsense thing and you will lose your time as well as your money too. Okay, that is why do not follow these superstitions. Whatever constellations and these satellites and comets and planets are there, no, they are nothing to do with your life. Okay, man stepped on the moon in the 20th century. We will conquer the Mars in the 21st century. हम लोग ने 20th century में चांद के ऊपर गए हैं, इंसान की टेक्नोलॉजी. 21st century में we have landed on the Mars. Hence in this age of the science, holding on to these beliefs which have proved to be wrong through the numerous scientific tests. ये सब wrong है numerous scientific test के accordingly. So it is unnecessary वेस्ट ऑफ वंस टाइम. ये सब चीज़ों में दिमाग लगाना, किसी का टाइम वेस्ट ही रहेगा, एनर्जी भी वेस्ट रहेगा, मनी भी वेस्ट रहेगा. सो इट इज़ नेसेसरी टू कंसिडर ऑल दिस इश्यूज विद द साइंटिफिक फ्रेम्स ऑफ द माइंड. अंडरस्टूड? So try to stop believing in the superstitions. Thanks for watching this video, students.